हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रेफिनिटी। फर्स्टली आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को ग्रो करने दीजिए सो दैट आई कैन हेल्प एज मेनी एस्पायरेंट्स एज पॉसिबल। कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, कुछ नहीं है, बस चाहता हूँ कि ग्रो हो चैनल, बहुत बड़ा बन जाए, बड़ा ब्रांड बन जाए, तब देखेंगे मॉनेटरी कुछ, नॉट नाउ। सो गाइज, जस्ट सब्सक्राइब। एंड आज मैं डिस्कस करूंगा कि लो टेस्ट सीरीज स्कोर। सो यू हैव लो टेस्ट सीरीज स्कोर अगर आ रहा है, देर आर मेनी एस्पायरेंट्स हु आर messaging me or texting me that we are getting low test series score. So today I will discuss with you that when I used to give test series, मैंने तो टेस्ट देना छोड़ ही दिया था in last my attempt which where I got top 10 rank in top 10. I have not given a single test, but I gave first time test series in 2020 and that was the last. So but that really helped me a lot. So if you have low score in test series like 150, even some are getting 100, 120 in prelims, I'm talking about, अभी pre आ रहा है ना, prelims, okay, pre में या 170 है तो it is good score. 150 above 150 good score. ठीक है, मैं छोटी सी वीडियो में आपको बताना चाहूंगा above 150 good score है guys. So if you are getting below 150, so उनको क्या करना है? देखो आपका, और ये सबको करना है, चाहे अबव 150 आ रहे हैं चाहे बिलो 150 आ रहे हैं, लेकिन बिलो वालों को तो करना ही करना है। जो बिलो 150 आ रहे हैं वो व्हाट दे शुड डू, दे हैव टू सॉल्व कंप्लीट पेपर, सॉल्व कंप्लीट पेपर अगेन। आप मतलब पूरा पेपर दोबारा सॉल्व करना है, बट टाइम कंस्ट्रेंट रखना है कि नहीं, छोड़ दीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन देखना है इस बार, solution, watch solution. Okay, so if you are getting below 150 marks, no, don't worry, you even can score better than person who are getting 170, 180, but you have to do this. Just solve complete paper again. You all guys have to solve the complete paper again. और time constraint is optional, आपको रखना है दोबारा. You can solve it, like you can take 10 questions, solve 10 question. ठीक है, 10 क्वेश्चन विद इन टाइम फ्रेम, एंड देन वॉच द सॉल्यूशन. मिस्टेक देखना है, वॉच योर मिस्टेक्स. देन अपार्ट फ्रॉम मिस्टेक व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन वॉच, मिस्टेक देख लिया, ठीक है, एंड देन सम ट्रिक्स, सॉल्यूशन में कोई ट्रिक्स मिला हो तो यू कैन वॉच दैट ऑल्सो. कोई ट्रिक छोटी मोटी होती है, या you are doing long, like you are taking a long time, or you are forgetting the formulas, whatever. like 10 क्वेश्चन करना है, उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है, फिर 10 क्वेश्चन करना है, प्रॉपर एनालिसिस करना है. सो you will it need 2 days to solve a paper. फर्स्ट डे तो हमने टेस्ट दिया, टेस्ट डे, फर्स्ट टेस्ट डे था, देन सेकंड एनालिसिस डे. ओके, मतलब टेस्ट देने से इतना फायदा नहीं मिलेगा जितना फायदा you will get maximum benefit out of the test series when you will analyze the test properly. So if you are getting low score test series, no worry, don't worry, just solve again all those 150 questions or whatever 75 question, all those questions again, each question. जिसके कम मार्क्स आ रहे हैं, जो जिसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, those who are getting good marks, they can plan, they can short, they can only do those questions which they are not able to solve in the exam, or they can solve those questions in which they are having doubts or they are doing wrong. Okay, yeah, they are facing difficulty in solving. But those who are getting below 150 marks, 140, 130, what they should do, they should solve complete paper again. Trust me, वो पूरा पेपर सॉल्व करने से you will re-revise the same concepts. Instead of revising from notes, you can revise from test or PYQ. I used to revise from PYQ. I used to solve 10-year PYQ, rigorously solve करता था. मैं 25 क्वेश्चन का सेट बनाता था. I put a set of 25 questions, I solve, then within 25 minutes, 30 minutes maximum, then I analyze these 25 questions rigorously.
और सेम क्वेश्चंस करने के बाद भी आई डू नॉट गेट 100% मार्क्स बिकॉज आई डू मिस्टेक और विद इन टाइम फ्रेम आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व। ओके, सो क्या करना है फाइनली, मैं एंड करता हूँ, कंक्लूड करता हूँ। सॉल्व देम अगेन, सॉल्व देम अगेन, और ऐसे सॉल्व करना, यू हैव टू सॉल्व इन अ वे दैट इफ दैट क्वेश्चन कम्स अगेन यू शुड एबल टू सॉल्व विद इन 1 मिनट। ओके, अगर वो क्वेश्चन सेम आता है, उस कंसेप्ट पे आता है, फॉर्मूला, सॉल्व देम अगेन, फॉर्मूला को रिवाइज करना है, फॉर्मूला जो लगाया है फॉर्मूला को रिवाइज करना है। ओके, सो सॉल्व देम अगेन एज, इवन मैं तो ये कहूंगा कि टेस्ट सीरीज ही सॉल्व कर लो 2-3 बार एग्जाम से पहले, ट्रस्ट मी यू विल गेट गुड मार्क्स। मतलब वन टेस्ट सीरीज कर लो अभी, नॉट वन टेस्ट सीरीज कंप्लीट प्लस PYQ। आजकल टेस्ट सीरीज भी अच्छी नहीं आ रही है, आई हैव सीन सम वेरी सिली क्वेश्चंस आर कमिंग, पीपल आर एबल टू सॉल्व। टेस्ट मॉडरेट लेवल का होना चाहिए, यूपीएससी थोड़ा टफ होना चाहिए। सो इतना कर लो बस, सॉल्व करो, दिस यू हैव लास्ट 20 days, सॉल्व करो। वन मोर डाउट पीपल आर गेटिंग, करंट अफेयर, करंट अफेयर्स फॉर ESE GS, people are asking me this doubt कि how to solve, how to get current affair। guys अगर आपके पास टाइम नहीं है, लीव इट। करंट अफेयर से आप कुछ नहीं, आप करंट अफेयर में जितना एफर्ट करेंगे उसके बाद, बिना एफर्ट करेंगे उसके बाद यू विल गेट द सेम मार्क्स। इफ यू आर नॉट अ कांस्टेंट रीडर, यू आर नॉट अ सिविल सर्विस एस्पायरेंट, लास्ट 1 year से आपने नहीं पढ़ा है, तो यू विल गेट द सेम मार्क्स। सो स्टिल मन को कैसे मारना है, व्हाट यू हैव टू डू, आई प्रोवाइड प्रेफिनिटी, प्रेफिनिटी टेलीग्राम चैनल। ठीक है, मैंने उसमें इकोनॉमी डाल दिया है, ICT डाल दिया है और इन्वायरमेंट डाल दिया है। इन तीनों को, इसकी वीडियो भी दे दी ICT की, इन्वायरमेंट की अगर मुझे आज टाइम मिलेगा तो आई विल रिकॉर्ड इट। सो जस्ट रीड दोस, इनको रीड कर लो। और मैं स्कीम्स स्कीम्स की भी PDF दे पाऊंगा, अगर नहीं दे पाया तो मेरी लास्ट ईयर वाली जो PDF है वो भी सफिशिएंट है, कुछ ज्यादा स्कीम ऐड नहीं हुई है जो, तो इनकी लास्ट देखो, इनको करना है। और इन्वायरमेंट जो करंट अफेयर है वो मैंने लास्ट ईयर भी एक वीडियो बनाई थी, मतलब जो ESE 25 के लिए, ESE 25 वीडियोस। करंट अफेयर ज्यादा अपडेट नहीं हुआ है, वो कुछ देखो स्टैटिक पार्ट आता है क्वेश्चन, अगर आप 25 के देखोगे तो देयर आर मेनी स्टैटिक क्वेश्चंस। करंट अफेयर से भी स्टैटिक आ रखे हैं, फसल बीमा योजना वो स्टैटिक है, कितने सालों से चल रहा है। सो उसमें गैस करना बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल आ रहा है तो कोई बात नहीं, करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन छोड़ दो ना, 5 कर लोगे आप, वही बहुत बड़ी बात है। बाकी स्टैटिक पोर्शन पे मेहनत करो, जो श्योर शॉर्ट है। करंट अफेयर पे ज्यादा मेहनत मत करो, लिव इट। ओके, तो ये जो मैंने जितना करंट अफेयर प्रोवाइड किया, नहीं तो आप देखो, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, मेडीजी की मैगजीन है, मेडीजी वाली मैगजीन जो है, उस मैगजीन को एक बार रीड कर लो, बट एक बार रीड करने से ट्रस्ट मी यू विल नॉट गेट मच। कुछ जो नहीं पढ़ते रेगुलर, दे विल नॉट अंडरस्टैंड थिंग्स ऑल्सो। सो मैंने इन्हीं इसी और भी सोर्स लेके समरी बनाई है, यू जस्ट रीड दो समरी अगेन 1-2 बार, तो वो जल्दी रिवाइज हो जाएगा। तो वॉच द समरी, मेडीजी जो करंट अफेयर मैगजीन है, करंट अफेयर मैगजीन, इसको छोड़ सकते हैं आप, पढ़ भी सकते हैं टाइम है तो मैंने इसी से कंटेंट लेके और कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड करके बनाया है समरी को। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, जल्द शॉर्ट में दिया है मैंने इसको, और वीडियोस जो लास्ट ईयर वाली है वो देख लीजिएगा करंट अफेयर की। और ट्रस्ट में देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो करंट अफेयर लगता है, इकोनॉमी, इकोनॉमी की एक मैंने वीडियो बनाई है, इकोनॉमी टर्म्स करके, तो वॉच दिस वीडियो, वॉच दिस। ठीक है, ये बेस स्टैटिक है, इसी से आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा एग्रीकल्चर पढ़ लीजिए, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की स्कीम्स पढ़ लीजिए, मैं एक दे दूंगा आर्टिकल अभी आज। ठीक है, एग्रीकल्चर की स्कीम्स पढ़ लीजिए, इससे क्वेश्चन आ जाता है, इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट है। देन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की जो मैंने वीडियो दी है स्टैटिक, उसको पढ़िए, उसमें भी बहुत सारे टर्म्स हैं, उससे भी पेपर बनता है। करंट अफेयर बनेगा कहाँ, देखो और मैं बताता हूँ, इसरो के बारे में पढ़ लीजिए, इसरो, इसरो के बारे में अलग से थोड़ा पढ़ लीजिए, इसरो पे आ जाता है। और करंट अफेयर कहाँ से इंपॉर्टेंट आता है, मेनली यही है। थोड़ा सा मीटी पढ़ लीजिए, मीटी, मीटी की कोई स्कीम्स आ रही है इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली, मीटी से पढ़ लीजिए। डॉट, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन,
इसके ये कुछ पढ़ लीजिए बस, इतने से भी आपका हो जाएगा। बैंकिंग से करंट अफेयर आ जाता है, बैंकिंग का मैंने पढ़ाया है लास्ट ईयर वाली वीडियो में, उसमें से देख लीजिएगा। नेक्स्ट ईयर मैं अपडेट करूंगा कंटेंट को कुछ कुछ इंपॉर्टेंट। सो इतना कर लीजिए करंट अफेयर के लिए बहुत है। और टेस्ट सीरीज के लिए गाइस उसको गिव टेस्ट सीरीज अगेन, उन क्वेश्चन को याद कर लो, कंसेप्ट समझ लो उनका, बहुत है उतना। ओके, थैंक यू।